مولانا شہریار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے مجرا ہوا، یہ کیا چیز ہے؟ تم لوگ کل دیوبندی ہو جاؤ گے، میں دعوے سے کہتا ہوں، اور دیوبندی کل مذاق اڑا گا پورنیہ کا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آس پاس میں سارے غیر مقلد ہیں، یہ سب کل مذاق اڑائیں گے بریلیوں کا جلسہ، کہیں گے بریلیوں کا جلسہ یہ ہوتا ہے، بریلیوں کا جلسہ یہی ہوتا ہے۔ کہ جو مشین اللہ نے پیٹ کی شکل میں دی ہے اس کا مہتو سمجھیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ان ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنے پاؤں کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنی زبان کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنے ہاتھ کا کیسا استعمال کیا، تم نے اپنی آنکھ کا کیسا استعمال کیا۔ ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناچ تماشے میں زندگی گزاری یا قرآن کی تلاوت میں گزاری؟ تم نے صرف وقتی لذت کی خاطر تم نے انجوائے کیا، یا تم نے رات میں تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے خوف سے آنسو بہایا؟ یہ سوال ہوگا ساری نعمتوں کے بارے میں۔ یہ قیمتی زندگی کس کام میں گزاری؟ ہمیں مشرکوں کے ناچنے گانے سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں یہود و نصارہ کے ناچ گانے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں بدھ اور جین کے ننگے رہنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں صرف مسلمانوں سے کہنا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ قیامت کے دن 1 انچ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پاؤ گے جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہیں دے دو۔ ہر مسلمان کے بچوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے گھر میں یہ حدیث لکھی ہونی چاہیے، ہر مدرسے کی دیواروں میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، ہر مسجد میں اس حدیث پاک کو لکھا جانا چاہیے، تاکہ سارے لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پہلا عمر ہی فیما افنا، زندگی کے بارے میں زندگی کس کام میں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا ان شباب ہی، جوانی کے بارے میں کہ تم نے جوانی کس کام میں گزاری۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں لوگ کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی کرو، بڑھاپے میں تو نیک بن ہی جانا ہے، جبکہ بڑھاپے میں 90% لوگ نیک نہیں بنتے، البتہ بیمار بن کر وہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو بھی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم جوانی کس کام میں گزاری، اس کا سوال ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا ان مال ہی من این اکتسبہ وفیما فزعہ، یعنی مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا سوال۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادب کرنا، ڈسپلین، یہ ہمارا فرض ہونا چاہیے۔ مائک کی آواز دو، مائک کی آواز دو۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ بولتے رہیے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب مال ہی من این اکتسبہ وفیما فزعہ، تم نے مال کہاں سے کمایا، کس راستے میں خرچ کیا، یہ سوال قیامت کے دن ہوگا۔ چوتھا سوال ہوگا جو کچھ تم نے جانا، جو کچھ تم نے خطاب کے ذریعے سنا، جو کچھ تم نے پڑھا، اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنا بہت بڑا فرض ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جلسہ کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو دینی تعلیم کا ایک ذریعہ ہے کہ رات بھر میں نے، سال بھر میں نے کیا کیا، بس اسی ہماری کارکردگی کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے کہ ہم نے سال بھر تک آپ کی زکوٰۃ، آپ کے خیرات، آپ کی خیرات، آپ کے صدقات کا کیا ہم نے استعمال کیا۔ وہ اسی لیے ہے صاحب نعت پاک پڑھنا، اسی لیے ہے تاکہ ہمیں مصطفیٰ سے محبت ہے، ورنہ صرف نعت پاک پڑھنا ہی ہماری غرض و غایت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادتوں میں قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تم نے نعت پڑھی یا نہیں پڑھی، سب سے پہلا سوال ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فاتحہ اچھی چیز ہے مگر نماز اس سے بڑی چیز ہے۔
जलसा जुलूस अच्छा काम है, मगर नमाज पढ़ना उससे सबसे बड़ा काम है। मज़ारात की हाजिरी अच्छा काम है, मगर उससे बड़ा काम है नमाज पढ़ना। सरकार आला हजरत का जो मसलक है वो मसलक यही है कि हाँ, नफल को नफल का दर्जा दिया जाए, फर्ज को फर्ज का दर्जा दिया जाए, वाजिब को वाजिब का दर्जा दिया जाए। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज बना दिया जाए, ऐसा नहीं कि साहब जो गैर जरूरी है उसको जरूरी का दर्जा दे दिया जाए। मसलक आला हजरत यही है कि फातिहा नफल है, नफल की हैसियत हो, जुलूस नफल है, जुलूस मोहम्मदी की नफल की हैसियत रहे, और मज़ारात की हाजिरी नफल है, उसकी हैसियत नफल ऑप्शनल की होनी चाहिए। सबसे पहला जो फर्ज आजम है वो नमाज है, फर्ज आजम नमाज है। दूसरा सबसे बड़ा फर्ज वो रोजा है, एक फर्ज आजम ज़कात है, एक फर्ज हज है। ये बेसिक चीजें हैं। कयामत के दिन सवाल नमाज का होगा, कयामत के दिन सवाल रोजे का होगा, कयामत के दिन सवाल हज का होगा, कयामत के दिन सवाल ज़कात का होगा, कयामत के दिन सवाल अखलाक का होगा, कयामत के दिन सवाल फराइज़ व वाजिबात का होगा। नवाफिल का सवाल नहीं होगा। अगर नवाफिल फर्ज के साथ मिल जाएं तो फिर उसका दर्जा और बुलंद हो जाएगा। लेकिन फर्ज को छोड़कर नफल बेवजन है, फर्ज को छोड़कर नफल खसो खाशाक की तरह है। तो जो कहता है कि फातिहा हराम है वो मिसगाइड है, जो कहता है कि जुलूस मोहम्मदी हराम है वो गुमराह है, जो कहता है कि औलिया सालिहीन के आस्थाने पे जाना जरूरी नहीं है, फर्ज वाजिब नहीं है, वह जाना गुनाह है, नाजायज है, वो भी गुमराह है। और जो ये कहता है कि सिर्फ नमाज पढ़ें, दरगाहों पे जाना नहीं, वो भी मिसगाइड है। और जो ये कहता हो कि सिर्फ फातिहा पढ़ें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ जलसा करें, नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ नात पढ़े नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ साहब कव्वाली करें नमाज जरूरी नहीं है, वो भी मिसगाइड है। बीच का रास्ता है मसलक एतदाल और मसलक आला हजरत के पहले फर्ज अदा होगा, फिर नफल अदा होगा। यहां नमाज भी अदा होगी, नियाज भी अदा की जाएगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, मज़ारात पे हाजिरी भी होगी, नमाज भी पढ़ी जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। ये फर्ज और नफल या दोनों मिलकर सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके जाएगा। नारे रिसालत, यही मसलक आला हज़रत, इसी का नाम मसलक अहले सुन्नत व जमात है। कल कोई बदअकीदा ये नहीं बोले कि इतने रुपए बड़ा जलसा हुआ, नमाज की बात नहीं हुई। मैं नमाज की वकालत करता हूं कि नमाज के बगैर जलसा बेवजन है, नमाज के बगैर फातिहा बेवजन है, नमाज के बगैर साहब जुलूस मोहम्मदी बेवजन है। इसलिए कि कोई नफल कबूल नहीं होता। आला हजरत ने लिखा है जब तक के फर्ज न अदा हो। 1 करोड़ रुपए की मस्जिद कोई तामीर करे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया अगर किसी पे फर्ज है तो वह फर्ज है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी लिखते हैं कि जब तक वह ज़कात अदा नहीं होगी कोई नफल खैरात काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब यह निकला कि जलसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जलसा भी होगा, नमाज पहले होगी, जलसा बाद में होगा, नमाज पहले होगी, फातिहा बाद में होगी, नमाज पहले होगी, नात बाद में पढ़ी जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा था, हुजूर रमजान में तरावी की नमाज सुनाता हूं, पढ़ाता हूं, तरावी पढ़ाता हूं, और रमजान में रोजे रखता हूं, कुरान शरीफ की तिलावत करनी पड़ती है, क्या मैं रोजा छोड़ सकता हूं? आला हजरत ने कितना अच्छा जवाब दिया। कहा बहुत सारे लोग हैं जो रोजा भी रखते हैं और कुरान पाक भी सुनाते हैं। अलबत्ता रही बात कि जो कुरान रोजा रख कर कुरान नहीं सुना सकता है, उसको मालूम होना चाहिए कि तरावी की नमाज फर्ज नहीं है, तरावी की नमाज वाजिब भी वित्र की तरह नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अगर किसी ने पढ़ा तो फर्ज छोड़ने के बराबर, किसी ने नहीं पढ़ा फर्ज छोड़ने के बराबर गुनाह नहीं होगा। जमात से नमाज पढ़ना ये क्या है, मुअक्कदा अल किफाया है। अगर जमात मस्जिद में तरावी की हो गई और फिर सारे लोग अपने घर में कुछ लोग पढ़ लिए, घर में पढ़ने वाला मुजरिम नहीं होगा। लेकिन अगर जोहर की जमात छोड़ दिया वह मुजरिम होगा। कहते हैं कि जो चीज फर्ज है रोजा, उसको छोड़कर ये तरावी की बात कर रहा है। बेहतर यही है कि वह तरावी अगर नहीं सुना सकता है, अलम तरा कैफा से लेकर बिरब्बिन नास तक, इसको पढ़ के अपनी तरावी पढ़ ले, मगर रोजा न छोड़े, क्योंकि रोजा फर्ज है, तरावी की नमाज सुन्नत है। ये फर्ज को फर्ज समझा जाए, नफल को नफल समझा जाए। जुनून और मजनू बन के ये न बताया जाए जलसे और जुलूस और अपने आलिमों की तौहीन नहीं की जाए। हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग गैर जरूरी को जरूरी समझते हैं। अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही इज्जत देने वाला है।
वही बंदों को जलील करने वाला, वही मदरसों को तरक्की देने वाला, वही लोगों के दिलों में अल्लाह ही मोहब्बत डालने वाला है। बेशुमार लोगों ने बड़े बड़े जलसे किए, मदरसे में तालीम नहीं हुई, वह मदरसा उजड़ गया। मैंने मुख्तसर सी जिंदगी में इसको देखा है। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की, 5 साल के बाद जलसा किया, और अगर अच्छे अच्छे आलिम, अच्छे हुफ्फाज उन्होंने दिया, उसके पास बच्चों के रखने की जगह नहीं है, इतने बच्चे हैं कि वो रख नहीं सकता है। असल क्वालिटी इल्म की है, असल क्वालिटी है आप बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए, एजुकेशन दीजिए, न कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ जुटा करके और अपने मदरसे को फरोग दिए। मदरसा फरोग पाता है इल्म से। मैं तमाम सुन्नी मदारिस के लोग जिम्मेदारों से कहता हूं, तालीम पे फोकस दें, दरसगाह पे फोकस दें, अच्छे आलिम को रखें, अच्छे उफाज को रखें। अगर एक बच्चा फारिग हुआ, अगर सही ढंग से कुरान सुनाया, तो सारे लोग यही कहेंगे, ये बता दे तू किस मदरसे में पढ़ा है, तेरा उस्ताद कौन है। यानी वही एक बच्चा आपका सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा। वही एक बच्चा आपके मदरसे की खूबियों को दूसरों के सामने एग्जीबिशन करने वाला एक जबरदस्त अलमबरदार हो जाएगा। आपने 10 बच्चों को आपने निकाल दिया और क्वालिटी उसमें नहीं है, वह जहां भी जाएंगे मदरसों को बदनाम करेंगे कि किस उस्ताद ने तुझको पढ़ाया है, किस मदरसे में तुम्हें पढ़ाया है। क्वालिटी पे जोर देना। बस आखिरी बात सुन ले, अभी मुसलमानों के चेहरे पे एक हवाइयां उड़ रही है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा है, हमारा फ्यूचर कैसा है, हमारा आने वाला दिन कैसा है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस्लाम का आने वाला दिन इतना सुनहरा है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम न बनता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका जैसे हाईली क्वालिफाइड और तरक्की याफ्ता मुल्क का कोई एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। या जोश में ये बातें नहीं बोली जाती है, बल्कि ये बातें दलाइल और प्रूफ के साथ की जाती हैं। आप अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों को कहता हूं, एक नाम आपने सुना होगा, जॉन डी रॉकफेलर का। हमारे शेख बैठे हुए हैं, शेख का दौरा लंदन होता है, हमारे हजरत का दौरा अमेरिका होता है, हमारे हजरत का दौरा अफ्रीका होता है। वह सारी दुनिया के हालात से बाखबर है। मैं अपने शेख को कहता हूं कि जॉन डी रॉकफेलर वह दुनिया का सबसे पहला अरबपति। आज की तारीख में बेशुमार अरबपति हैं, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, अडानी, अंबानी, ये सारे के सारे अरबपति हैं। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर वह दुनिया का सबसे पहला अमेरिका का अरबपति, बिलियनियर, मिलियनियर ही बिलियनियर, यानी अरबपति, जिनके पास खरबों की दौलत थी। 53 साल की उम्र में वह खरबपति बीमार हो गया। बीमार होने के बाद अब उनको लगा कि अब जैसे कि मैं मर जाऊंगा, जब मर ही जाऊंगा। अक्सर आजकल यह डिप्रेशन का मर्ज बढ़ रहा है, औरतों में भी और मर्दों में भी। औरतें भी कहती हैं कि अब मुझको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मर्द भी कहते हैं कि थोड़ा सा बीमार हुआ, बुखार हुआ और लगता है कि जैसे कि अब मैं मर जाऊंगा। ये मरने की बातें, तो अब ठीक है, अच्छी बात है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मरने के बाद जहां जाऊंगा वहां के लिए तो काम बढ़ा देना चाहिए, वहां की इबादत बढ़ा देनी चाहिए। सिर्फ खौफ है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बच्ची का क्या होगा। नहीं, अक्लमंद वो है जिसको लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, उसको इबादत बढ़ा देनी चाहिए, सजदा बढ़ा देनी चाहिए, तिलावत बढ़ा देनी चाहिए, गुनाहों से सच्ची तौबा बढ़ा देनी चाहिए। ये होना चाहिए, ना के साथ बाल बच्चों के खौफ में मौत से घबराना चाहिए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। कुरान में आया है, ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। रोजी देने वाला अल्लाह है। वो अमेरिका का खरबपति, उसने सोचा कि अब जब मुझको मर ही जाना है तो अब क्यों नहीं सदका तो खैरात करके मैं मरूं। अपनी दौलत का एक बड़ा पार्ट मेडिकल एक्सपर्ट के खर्च पे उन्होंने डोनेट किया कि नई नई बीमारियां और उसके इलाज और ट्रीटमेंट दरियाफ्त करने के पीछे मेरी दौलत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। उन्होंने एक स्कूल बनवाया, गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, बेवाओं के बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, फ्री तालीम। उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी दौलत का हॉस्पिटल पे वक्फ किया, यहाँ गरीबों, मिस्किनों, माजूरों, कम पैसे वालों का इलाज होगा। यानी अपने पैसे को गरीबों के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए
चैरिटी के लिए उन्होंने दरवाजा खोल लिया। उसको ऐसा महसूस हुआ 2-3 महीने के बाद कि अंदर से उसका कैंसर का जख्म हल्का हो रहा है। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का अंग्रेजी अखबार है, हमारे बच्चे तो एमए करने के बाद भी एक जुमला अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। जिसको होना था डीएम वो चपरासी की भी नहीं बन पाए, जिनको होना था साइंटिस्ट वो गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। अमेरिका का यहूदी एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करके दुनिया को माइक्रोफोन दे, दुनिया को हवाई जहाज दे, और हमारे वो बच्चे जिसके पास थी मेरिट डीएम बनने की, वो सिर्फ मोबाइल चला चला करके वो बच्चे हमारे गली कूचे के दिल फेंक आशिक बन गए, किसी काबिल रहे। एक बच्चा हिंदुस्तान का अगर आईएएस ऑफिसर बनता है तो 40 करोड़ मुसलमानों का कलेजा ठंडा हो जाता है। वो कमा के अपने बाप को देगा, मगर नाम पूरी मुस्लिम सोसाइटी का होता है। हमारी मेजॉरिटी हमारे नौजवानों की मोबाइल चला चला के डीएम तो नहीं बनी, अलबत्ता अपनी जवानी में आग लगा दी, अपनी सोच और फिक्र में आग लगा दी, अपने 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 सेहत को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने खानदान की नाक मिट्टी में मिला दी। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरतन हो, 24 घंटे उसमें घुस के न रहे। टॉयलेट का इस्तेमाल जरूरत हो, 24 घंटे टॉयलेट में घुसने वाला तबाह बर्बाद हो जाएगा, सेहत खत्म हो जाएगी। यहूदी एक एक मिनट को कीमती समझते हैं तो जलील कौम दुनिया में सबसे मालदार कौम है। जबकि नमाजों की पाबंदी हमें वक्त की कदर सिखाती है, जबकि सहर और इफ्तार का सिस्टम वक्त की कदर सिखाता है, जबकि ज़कात का मैनेज हमें एक एक मिनट को कीमती समझने का पैगाम देता है। 1 मिनट पहले दाना हलाल, 1 मिनट के बाद दाना हराम, ये हमें पंक्चुअलिटी सिखाता है। मगर अक्ल रहे तब न इन बातों पे हम गौर करें। हमारे पास तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, हमारे पास जज्बात बहुत ज्यादा है, हमारे पास सब छोटी फिक्री की वजह से हम जो लायक थे उस लायक नहीं बन पाए। अमेरिका का खरबपति, उन्होंने दौलतों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल पे, हॉस्पिटल पे, गरीबों के राशन के किट पे और मेडिकल एक्सपर्ट की टीम बैठा के, ताकि नई बीमारियों का इलाज खोज करने के लिए वह टीम खास रहे। उनको ऐसा लगा जब से वो चैरिटी सदका तो खैरात का काम शुरू किया, अंदर से उसके बदन का जो कैंसर था उसका मर्ज दूर होने लगा। 4 महीने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया, उसके अंदर का कैंसर खत्म हो चुका था। अब वो शख्स दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वाला गवाह रहे, दुनिया वाला गवाह रहे कि चैरिटी से बीमारी का इलाज होता है, सदका से बीमारी का इलाज होता है, खैरात से बीमारी का इलाज होता है। उन्होंने कहा खैरात से बीमारी का इलाज, बीमारी के इलाज के जितने तरीके हैं उसमें सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि चैरिटी और खैरात से बीमारियों का इलाज होता है। सदका तो खैरात से मरीज सेहतमंद होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं, सदका तो खैरात से मरीज सेहतयाब होते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को बताया। हमारे शेख आ गए, एक दूसरे शेख की आमद हो गई जो बरकाती खानवादे के शेख हैं, वो आ गए और शहजादे आला हजरत यहां बैठे हुए हैं। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, उसको गौर से सुनेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, पूरे मुसलमानों का दर्द सीने में मौजूद है, कहां क्या हालात हैं वहां उस हालात का मुशाहिदा करते हैं। तो हम अपने गुस्से के मुजाहरे के लिए नफ्स की तस्कीर की खातिर नहीं देते हैं, सिर्फ मिल्लत के लिए, कौम के लिए, मसलक के लिए हम अपने लोगों के सामने अपनी कमजोरी बयान करते हैं। जरा गौर से सुने, जब उन्होंने खरबपति ने कहा कि मेरा मर्ज अच्छा हुआ, इलाज के जितने तरीके हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, साहब जड़ी बूटी, आयुर्वेद में सब तरीके हैं इलाज के, मगर सदका तो खैरात इलाज का एक जबरदस्त तरीका है। तो जो बात जॉन बी रॉकफेलर ने आज कही, यही बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी कि दावू मरदाकुम बिस्सदका व हस्सनु अम्वालकुम बिज़्ज़कात। मुस्तफा ने कहा अपने मरीजों का इलाज सदका करके क्या करो। तो आज 1400 साल के बाद अमेरिका का खरबपति अपने तजर्बे से दुनिया को बताया कि सदका से एक बीमार ठीक होता है। जो बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही, वो अमेरिका का क्रिश्चियन जाती तजर्बे से बता दिया कि मुस्तफा का कौल सच्चा है, मुस्तफा का मजहब सच्चा है और खैरात से इलाज होता है। तो आज जैसे दानिश्वरों के बीच मुस्तफा की हदीस की सदाकत सामने आ रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है।
اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے ریسرچ بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے, ویسے ویسے مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسلام کے تعلق سے آپ بے فکر ہو جائیں, اپنی فکر کریں کہ میرا مرتے وقت کیا ہوگا, میرا قبر میں کیا ہوگا, میرا حشر میں کیا ہوگا, کل اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. اسلام کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام بہت زندہ و تابندہ مذہب ہے. پوری دنیا کے ہر گوشے میں, ہر خطے میں اسلامی چراغ روشن ہو رہا ہے. جتنے بھی لوگوں نے اسلام کا چراغ بجھانا چاہا وہ سب بجھ گئے, ان کی عزتیں مٹی میں مل گئی, ان کے آبا و اجداد دشمنی کی آگ میں جل کر مٹی میں مل گئے. اسلام مسکرا رہا ہے, مدرسہ مسکرا رہا ہے, مسجدیں مسکرا رہی ہے, اذان مسکرا رہی ہے, ہمارے مشائخ کے چہرے کی داڑھیاں, ان کے سروں کی پگڑیاں مسکرا رہی ہیں. کبھی اسلام خطرے میں نہیں تھا اور آنے والے وقت میں بھی جیسے جیسے علم کا اجالا پھیلے گا مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی مدرسہ غوثیہ سراج العلوم کو سلامت رکھے, مولانا قاسم الحق صاحب کو سلامت رکھے, ان کے مدرسے کی محبتیں علاقے کے سارے مسلمان کے دلوں میں عطا فرما دے. یہاں کے سارے منتظمین, اراکین اور تمام پڑھنے والے بچے, سارے اساتذہ, سبوں کو اخلاص کے ساتھ دینی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ کو اللہ لمبی عمر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ انہیں اور پوری دنیا میں